Hello everyone. In this video, we will discuss about the textual criticism. I have already made a video of textual criticism. In my previous video, I have discussed the objective of literary criticism. Textual criticism. What is textual criticism? And the name of the approaches which is used for textual criticism. So, before beginning this video, I I want to discuss in short about the textual criticism. Textual criticism, as the word textual criticism define itself as textual criticism is criticize a text. As we have known that there are so many texts of a particular text. For example, Ramayan. There are so many versions of Ramayan available at that time, but we don't know which is the original Ramayan. Similarly, there are, for example, if you take the example of Hamlet, the work of William Shakespeare, Hamlet, there are so many versions of Hamlet, but we don't know which is the which is the original text of the Hamlet. So, to identify the original text of a particular text or particular literature or particular book, we have to analyze the different versions of that book. So these the versions to analyze to criticize the different type of text of a particular book is known as the textual criticism. So in this video we will discuss some methods of textual criticism. First method is eclecticism. First method is eclecticism. In eclecticism refer to the practice of consulting a wide diversity of witnesses to a particular original. It means to criticize a particular book, we have to use different types of versions of that book. For example, if we want to know the original text of the Hamlet, then we have to consult different versions of the Hamlet which is present at the time. So, for doing a textual criticism, we have different types of witnesses. This practice is based on the principle that more independent transmission histories there are, the less they reproduced the errors. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक बुक का अगर हमें ओरिजिनल टेक्स्ट निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। और ये इलेक्टिव में ये कहता है कि जितने ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन होगा, यानी कि जितने भी वर्जन्स हमारे पास हैं वे सभी वर्जन्स अगर हमें ऐसे लगते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि वे वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमको आसानी होगी ओरिजिनल टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए। The result of the process is a text with reading drawing from many witnesses. इसमें क्या होता है कि जो इस प्रोसेस से जो रिजल्ट निकल कर आता है हमारे पास, उसमें हम बहुत सारे वर्जन्स को रीड आउट करते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई रिजल्ट निकल कर आता है। इन दिस अप्रोच नो सिंगल विटनेस इज फेवर्ड। किसी एक हम ये नहीं कहते कि हम एक वर्जन को हम जो है वो एक ओरिजिनल मान देते हैं, अपनी तरफ से हम नहीं मानते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से क्रिटिसाइज उसको हम करते हैं। So we have two evidence for doing the literary criticism: external evidence and the internal evidence. Now, what is external evidence? External evidence is the evidence of each physical witnesses. It means the physical witness of a particular text. Its date, what is the publication date of that version, what is the source of that version of the text, and the relationship. यानी कि मान ली हमारे पास 1920 में, मतलब हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं हैमलेट के, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है। यानी कि शेक्सपियर जो थे वो 17 के ज़माने के थे, और अगर वह वर्जन 19 या 18 का है तो और अगर हमें यह पता चलता है कि वह जो वर्जन है वो हमारे पास कौन से ईयर का है, वो 18 का है, 18 और 19 का है, तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे कि वह वर्जन ओरिजिनल नहीं है। ऐसे ही उसका सोर्स क्या है, यानी कि उसमें सोर्सेज भी लिखे रहते हैं कि यह वो जो किताब वो खास के सोर्सेज से ली गई है, तो सोर्सेज से पता चल जाएगा कि सोर्सेज से ये किताब लिखी गई है, हैमलेट की यह वर्जन लिखा गया है, तो दिस इज़ नॉट ओरिजिनल। एंड द रिलेशनशिप टू अदर नॉन विटनेसेस, उसका रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि दूसरी किताबों में भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि वह जो किताब है वो दूसरी किताब से कितनी रिलेटेड है। अगर बिल्कुल ही अलग है, उसमें बहुत ही मतलब कि जो डायलॉग्स हैं या बहुत सारे कुछ कैरेक्टर्स ही अलग है, तो यानी कि वो बिल्कुल ही क्या है, अलग किताब है, वो बिल्कुल ही मतलब अलग तरीके से वो लिखी गई है। तो हम उसको एक्सटर्नल, ये सब एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं, डेट, सोर्स एंड रिलेशनशिप। क्रिटिक प्रेफर द ओल्डेस्ट विटनेसेस एज इट हैव फ्यू एरर्स एंड लेस एक्सीडेंट एंड इंडिविजुअल बाइसेस। यानी कि क्रिटिक्स क्या करते हैं कि बहुत ही जो ओल्डेस्ट विटनेस होता है, यानी कि जो सबसे हमारे पास ओल्डनेस किताब होती है, उसको हम प्रेफर करते हैं, सबसे हमारे पास जो ओल्ड किताब होती है उसको, क्योंकि इसमें बहुत ही कम एरर्स हमें देखने को मिलते हैं एंड दैट वर्जन इज क्लोज टू द ओरिजिनल वर्जन। द सेकेंड इज इंटरनल एविडेंस इज इट्स एविडेंस दैट केम्स फ्रॉम टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर से है, यानी कि उसकी इनर मटेरियल को हम इंटरनल एविडेंस बोलेंगे। वेरियस कंसिडरेशंस कैन बी यूज्ड टू डिसाइड विच रीडिंग इज लाइकली टू ओरिजिनल। तो इंटरनल एविडेंस जो है वो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि विच वन इज़ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास कंसिडरेशन है। एक तो है हमारा कि शॉर्टर रीडिंग, जिसको हम दूसरी भाषा में लैक्टियो ब्रेवियर बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है शॉर्टर रीडिंग, यानी कि बहुत सारे कंसिडरेशंस अलग अलग क्रिटिक्स ने निकाले हैं और उनका ये कहना है कि शॉर्टर रीडिंग यानी कि जो वर्जन बिल्कुल शॉर्ट है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल टू क्लोज टू द ओरिजिनल होता है। मीन्स द टेक्स्ट विच आर शॉर्ट आर मोस्ट लाइकली ओरिजिनल एज सब्सक्राइबर में एड वर्ड्स फॉर क्लैरिफिकेशन। यानी कि जो ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे शॉर्ट वर्जन होता है, जो शॉर्ट किताब होती है वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि आप जो जो लेंथी किताब होती है उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मुश्किल होते हैं, उनके मीनिंग हमें नहीं पता होते हैं। तो जब उनको टाइप किया गया, उनको जब उनकी कॉपी बनाई गई थी, जब प्रिंटर नहीं था तो हाथ से कॉपी बनाई जाती थी, तो स्क्रीपर्स क्या होते थे, उनका मीनिंग उसमें ऐड कर देते थे। तो यानी कि जो शॉर्टर किताब है वो क्या होती थी, ओरिजिनल मानी जाती है। दूसरा है द हार्डर रीडिंग इज स्ट्रॉन्गर। जो मुश्किल रीडिंग है, जो हमें समझ में नहीं आती है, दैट टेक्स्ट इज क्लोज टू द ओरिजिनल। डिफिकल्ट रीडिंग इज मोस्ट लाइकली टू ओरिजिनल। सेकेंड इज अनदर स्क्रिबल टेंडेंसी इज होम्योटिल्यूटन। होम्योटिल्यूटन क्या होता है, मीनिंग सिमिलर एंडिंग, यानी कि व्हेन टू वर्ड्स फ्रेजेस लाइन्स विद सिमिलर सीक्वेंस ऑफ लेटर, यानी कि दो लाइन है, दो कोई भी लाइन है, वर्ड्स है, अगर उसकी राइमिंग एंड ऑफ राइमिंग एक जैसी है तो ऐसा माना जाता है कि दैट टेक्स्ट इज क्लोज टू द ओरिजिनल। द सेकेंड इज कैनन ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। व्हाट इज द कैनन ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म? वेरियस स्कॉलर्स हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ने गाइडलाइंस निकाली है कि हम किस बेसिस पे टेक्सुअल क्रिटिसिज्म करेंगे, कि वो शॉर्टर होनी चाहिए, वह वर्जन हार्डर टू रीडिंग होना चाहिए और इसके अंदर होम्यो टेटुलियन होना चाहिए। एक है जॉन एल्ब्रच बेंगल। ठीक है, उन्होंने ही प्रोड्यूस्ड 1734 प्रोड्यूस्ड एन एडिशन ऑफ ग्रीक न्यू टेस्टामेंट का, उसने एक एडिशन प्रोड्यूस्ड किया था, एंड इन इट ही एस्टेब्लिश्ड द रूल द हार्डर रीडिंग इज टू बी प्रेफर्ड। In Greek New Testament, he published that the harder reading is close to the original text. उसका ये मानना था। The second is John Jacob Grischbach. He published several edition of New Testament. उसने बहुत सारी edition published करे थे न्यू टेस्टामेंट के। In his 1976 edition, he established the 15 critical rule, और उसने 15 critical rule published करे थे in 1976 edition में। The third one is Lectio Deflier Posture. इसका मतलब होता है the harder reading is better. The work which has harder reading is close to the original. The next one is Lectio Brevi Profando. What is Lectio Brevi? Lectio Brevier Preferenda. ठीक है, इसका मतलब होता है द शॉर्टर रीडिंग इज बेटर। देन ब्रुक फ्रोस वेस्टर और फैटन हॉट published an edition of New Testament in Greek 1881. They produced 9 critical rules. उसके बाद दो और critics आए थे, उन्होंने जो है वो क्या कहा था, 9 critical rules उन्होंने established करे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि the reading is less likely to be original that shows a disposition to smooth away difficulties. यानी कि यह रीडिंग ओरिजिनल टेक्स्ट के इक्वल होती है जिसके अंदर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं। रीडिंग्स आर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड बाय रीजन ऑफ क्वालिटी एंड नॉट द नंबर ऑफ सपोर्टिंग विटनेसेस।
और उन्होंने बोला था कि हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो हम किसी भी रीडिंग को अप्रूव किए हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये टेक्स्ट हमको हम अप्रूव करते हैं या ये टेक्स्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, वो हम अन्य विटनेसेस के बेसिस पे उस चीज़ को करेंगे। तो दिस थिंग इज इलेक्टिज्म। द सेकेंड मेथड इज स्टीमेटिक्स। व्हाट इज स्टीमेटिक्स? Schematics is Clark Langemann contribute to famous this method but he didn't invent it. ठीक है, इन्होंने इसको फेमस किया था बट ही डिडंट इन्वेंटेड। स्टीमेटिक्स टाइप फ्रॉम स्टीमेटा मीन्स फैमिली ट्री, यानी कि स्टीमेटा से निकला है जिसका मतलब होता है फैमिली ट्री। एज यू नो व्हाट इज़ द फैमिली ट्री? फैमिली ट्री में क्या होता है कि हम आगे से शुरू करते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, देन फादर मदर, आवर अंकल्स आंटीज़, देन आवर ब्रदर सिस्टर एंड कजिन। इस तरीके से हम सब एक तरीके का फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, मीनिंग शो द रिलेशनशिप ऑफ सर्वाइविंग विटनेसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टीमेटिक्स में एक स्टीम निकालते हैं अलग अलग कि भाई हेमलेट हमने वर्जन लिया, हेमलेट मान लो 17 समथिंग कुछ में पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय 1700 टू 1800 के बीच में जितने भी वर्जन्स पब्लिश्ड हुए थे हेमलेट के, उसका अपना एक स्ट्रीम ट्री बना देते हैं। देन 1800 टू 19 में स्ट्रीम ट्री बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रीम ट्री बना के हमको क्या होता है, आसानी मिल जाती है कि हम बुक का नाम लिख देते हैं कि ये बुक है वो इस ईयर में पब्लिश्ड हुई थी, ये बुक इस ईयर में पब्लिश्ड हुई थी। तो इस तरीके से हम एक फैमिली ट्री बना देते हैं। ठीक है, सेवरल विटनेसेस का। फैमिली ट्री इज ऑल्सो नोन एज क्लाडोग्राम। क्लाडोग्राम भी बोला जाता है फैमिली ट्री को। देन if two witnesses have a number of errors in common, it may be presumed that they were diverged from common intermediate sources, and it is called hy- hyper hyper हाइफर्शी टाइप। यानी कि जब हम ये देखते हैं कि दो वर्जन्स हमने लिए और हमें यह पता चला कि दोनों वर्जन्स में एक ही जैसे एरर हैं, तो यानी कि यह माना जाता है कि ये दोनों ही वर्जन्स एक ही सोर्सेज से कॉपी आउट की गई हैं, तो उनको हम सेट कर देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द स्टीमेटा इज नोन एंड रिसेशन। एक स्टीमेटा को बनाने की प्रोसेस को रिसेशन कहा जाता है। द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन एंड सिलेक्टो। फर्स्ट स्टेप इज find out the surviving witnesses of a particular text. This is the first step of schematics. The second step is selection or selector. It means where the text of the archetype original one is determined by examining variants from the closest archetype to the archetype and selecting the best one. इसमें क्या होता है, सिलेक्शन हम करते हैं। इसमें हम ऐसे टेक्स्ट को जो ओरिजिनल, ऐसे टेक्स्ट को हम सिलेक्शन करते हैं जो कि क्लोज टू द ओरिजिनल टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल वी हैव 50 वर्जन्स ऑफ अ हैमलेट, देन बाय डूइंग द textual criticism, by doing internal external evidence, and by doing ellectivism method and by doing other methods, we have identified the 10 versions which is close to the original version of the Hamlet. So this selection of these 10 versions of Hamlet is known as, इस प्रोसेस को हम सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। इफ वन रीडिंग occurs more often than other at the same level of the tree, then the dominating reading is selected। यानी कि क्या होता है कि हम देखते हैं कि दो तीन वर्जन्स में हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट होती है, बेस्ट मतलब मान लो हम कि 4 वर्जन्स हमारे पास हैं हैमलेट के, उनमें से मान लो कि चारों वर्जन्स में एक जैसी चीज़ है, लेकिन जो सबसे बेस्ट उन पाँचों में से जो सबसे बेस्ट चीज़, बेस्ट हमको वर्जन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, वो थर्ड स्टेप हमारा आता है एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप होता है टू डिटरमाइन द वेरियस विटनेसेस ऑफ a book of a text. The second is selecting few text which is close to the original text, and the third is examination. What is examination? After select the text still contain error, the examination is used to find corruption, and corruption is corrected by a process named emendation. हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मान लो हमने 10 वर्जन सेलेक्ट कर लिए हैमलेट के, ठीक है, तो अब हम एग्जामिनेशन करते हैं क्योंकि 10 वर्जन में कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज रीडिंग करके हमें पता चलता है कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन these versions. Then this process is known as examination. By examine, we have find out some errors in the versions and we amend that, and we उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं उस वर्जन को। एमेंडेशन नोट सपोर्टेड बाय एनी नॉन सोर्सेज आर नोन एज कॉन्जेक्चुरल एमेंडेशन। जब हमें
हम किसी एक विटनेसेस को हम बिना किसी सोर्सेज के हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमें अंदर से इंट्यूशन आती है कि दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं, उसको हम साइड आउट कर देते हैं। हमारे पास कोई नॉन सोर्सेज नहीं होता, तो इस प्रकार की इमेंडेशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की इमेंडेशन को हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इमेंडेशन। देन कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग। अब कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग एक और प्रोसेस है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की, वो है क्या है, कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग इज द स्कॉलर्स फिक्स एरर्स इन बेस टेक्स्ट। उसमें क्या करता है कि जो हमारे पास एक बेस जो टेक्स्ट लेता है, सबसे पहले वाला जो विटनेस वो लेता है, उसके अंदर वो फाइंड आउट कर लेता है कि हाँ भाई ये एरर है, ये एरर अगर किसी और वर्जन्स में भी मिलते हैं तो उस वो क्या होगा, उसको उस वर्जन को हम हटा देंगे। फॉर एग्जांपल हैमलेट का अगर हम कर रहे हैं, हमारे पास 50 वर्जन है हैमलेट के, ठीक है, हमने एक वर्जन उठाया, उस मान लो हमने 1900 का ही कोई वर्जन उठाया है, 1900 में ही किसी ने हैमलेट की एक और बुक लिखी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें हम कुछ एरर्स देख लेते हैं कि हाँ भाई ये एरर्स, अगर वही एरर्स किसी दूसरे वर्जन दूसरी उसी के वर्जन में हमें मिलते हैं, दूसरी किताब में मिलते हैं हैमलेट की, तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये एरर उसमें भी है, तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट एरर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अदर विटनेसेस। बेस टेक्स्ट सेलेक्टेड फ्रॉम ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। और जो बेस टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो हम ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट से सेलेक्ट करते हैं। इन द मेथड द क्रिटिक एग्जामिन द बेक टेक्स्ट एंड मेक करेक्शन where critic appear the base is wrong. Close call decision are used for this method. The second is macro concept of copy text. Ronald and Macro coined the term in his 1904 edition of the works of Thomas Nashe. Thomas Nashe पर रोनाल्ड एंड मैक्रो ने अपना एक काम किया था और उसमें उन्होंने जो है वो कॉपी टेक्स्ट एक टर्म को पॉइंट आउट किया था. He condemned the schematic method and preferred to close one particular text and was thought to be reliable and then amend it where the text was correct. उसने schematic method को रिजेक्ट कर दिया था और उसने ये बोला था कि इससे अच्छा है कि हम किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर हम ये देखें कि इसमें क्या क्या एरर्स है और उस एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. W जोर्ज रोट एन एसे द रैशनल ऑफ कॉपी टेक्स्ट. हिज रैशनल्स वाज अडॉप्टेड बाय फ्रेडसन बोवर एंड थॉमस टेंशल एंड नोन एज द जॉर्ज बोवर्स टेंशल मेथड. तो आज हमने इलेक्ट्रिज्म स्कीमेटिक्स मेथड के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिज्म वाले जो मेथड था हमारा, आज हमने जो पढ़ाई कर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिज्म. इसके अंदर क्या था कि बहुत सारे विटनेसेस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक क्या करने के लिए, किसी भी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करने के लिए, और एक्सटर्नल इंटरनल एविडेंस का यूज हम किया जाता है. व्हाट इज एक्सटर्नल एविडेंस? एक्सटर्नल एविडेंस इज डेट, सोर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट witnesses, and internal evidence is shorter reading is prefer, harder reading is prefer, ठीक है. और राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं, राइमिंग होती हैं सेंटेंसेस या वर्ड्स के बीच में, तो वो वाले जो टेक्स्ट होता है उसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है. इसके बाद हमने स्कीमेटिक्स के बारे में पढ़ा. स्कीमेटिक्स होता है कि एक फैमिली ट्री बना लिया जाता है. इन दिस मेथड देयर आर 3 प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज first one is determining the different surviving witnesses of a particular text. Second one is selection. It means selecting few versions of a particular text and that examine that few versions, ठीक है. उसको हम एग्जाम करते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद उसको हम अमेंड करते चले जाते हैं. So this is all about the textual criticism.